Hello everyone. Today we are going to start on the subject history. Our topic is a very important topic, that is the early stage of collective action. And early stage of a collective action we are going to discuss for the characteristics and we will analyze. Okay. So we are going to analyze even what are the characteristics under this topic we are going to discuss for this. Let's see. Under this early stage of collective action, I am going to discuss for the revolt of 1857. This is the very important topic in our history. Okay, and whenever we talked about the history, this is the very important one where we discussed about the revolt of 1857. So let's start. Let's start why revolt of 1857 took place in India, okay, and why it was so necessary to talk, and it was also considered as a instead of Sippun mutiny, we also consider revolt of 1857 as a great revolt of 1857. This is also considered as a great revolt of 1857 because this was a revolt which was occurred in India after 100 years, okay, when there was a colonial rule. That means when East India Company was ruling our country, okay. So we have to know first the cause, okay, that is why this revolt took place. So this revolt took place because of this factor, okay. Let's see what were the cause. Causes were the social, political, economic, military and immediate cause was occurred, and we saw the result of 1857. So history, when East India Company came, okay, to India, as they found the business, for the business purpose they came to India. Not only India but whole parts of the Asian country, okay, they occupied. Not only India but Asian country they saw as a trader part, understood, they saw as a very huge amount of a profit and a business factor. But in Asia country, understood, in the Asian part where they formed a long term of business was that our India. So we have to know this 1857 revolt, why it took place. So let's start. Social cause. What was the social cause, okay, सामाजिक कॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कॉलोनियल किसे बोलते हैं, वही ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कहते हैं हम, जो आए थे इंडिया में ये कहते हुए कि हमें बिजनेस करना है आपके कंट्री में, आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। इस चक्कर में ये हमारे इंडिया में घुसपैठी किए थे, ओके, इंट्रूडरी थे ये लोग, हम बोल सकते हैं इंट्रूडरी, ओके, बट दे केम इन अ कन्वीनियंस वे। वो बोले कि हमें बिजनेस करना है, आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है, एंड वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस योर कंट्री। और उस टाइम हमारे रूलर्स इतने भी बहुत ही ब्रॉड माइंड नहीं थे कि वो इतना दिमाग लगा सके कि कोई हमारे कंट्री रूल भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रीड दिस हिस्ट्री, ओके, व्हाई वी आर रीडिंग हिस्ट्री, बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द अदर हार्मफुल इफेक्ट. So let's see the social cause. Social cause, first point is your difference between British rule and native subject. There was a difference, okay, difference between the British rule and the native subject. This was a social cause where British rule found. ब्रिटिश को यहाँ पे समझ में आ गया कि नेटिव रूलर जितना भी था हमारे कंट्री में, उनके अपने में ही बहुत ही लड़ाई होता था, उनके अपने ही भाई बंधु में लड़ाई होता था कि उनको सत्ता मिल जाए, मतलब कि क्राउन मिल जाए। तो इस चीज़ में उसने डिफरेंस किया कि ये चीज़ हो रहा है इंडिया में। दैट वाज बहुत आसान तरीका हो गया उन्हें कि ये कनकर कर सके, अंडरस्टूड, कैन टेक द प्लेस. नंबर सेकेंड पॉइंट, अंडर सोशल कॉज ओनली डिस्कस्ड टुवर्ड्स इंडियन, okay, they started disgust towards the Indian. There was also the orthodox mentality of Indians, okay, orthodox mentality भी था Indians people में, और यही तो हमेशा the major part बना था divide and rule policy. इन्हें ये सिर्फ मुस्लिम और हिंदूस में ही पता नहीं चला कि डिवाइड और रूल पॉलिसी स्टार्ट किए, बट ये लोग जब स्टार्टिंग में ही जब इंडिया में
एज अ कॉलोनियल आया था, अंडरस्टूड द ईस्ट इंडिया कंपनी, दे अंडरस्टूड दैट कि यहाँ पे बहुत अच्छे से डिवाइड और रूल पॉलिसी के थ्रू वो लंबे समय तक यहाँ पे अपना बिजनेस और अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ओके, द टॉर्चर बाय द ब्रिटिश ऑफिसर. Okay, there was also a harassment by the British official towards the Indian people. This was the another social cause. So these are the background. We are talking about the social cause. These all are the background. Why revolt of 1857 took place. It was also called a great revolt of 1857. और बहुत सारा historian, Indian historian ही है. Understood? The Savarkar, जो writer and philosopher है, professor, he told that it is not only a great revolt of 1857 but it was also considered as the first independence war in India. Understood? So let's go to the political cause. Now the political cause, what were the political cause under this East India Company? Okay, annexation policy of Dalhousie. Okay, जब Dalhousie एंट्री किया, Dalhousie was a Governor General of India. Okay, he was appointed as a Governor General of India. So when he came, definitely he was only a man. Okay, the Governor General of India, he was only the man who brought application of the doctrine of lapse. Doctrine of lapse अब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौसी के थ्रू ही लाया गया था, जो कि इंडिया का गवर्नर जनरल थे. आपको ये याद रखना है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यही था कि इन्होंने ये कानून लाया था जब इन लोगों के अंडर, जब डेफिनेटली ये सोशल कॉज करते हुए जब पॉलिटिकल इम्पीरियलिस्ट पावर इन लोग के हाथ में आ गए, पॉलिटिकल पावर जब इन लोग का हाथ में आ गए, तो ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, ये डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के ऊपर लाना स्टार्ट कर दिया. और यही एक लॉ और भी लाया था, दैट इज योर डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, दैट इज द नेटिव स्टेट को किस तरह से कैप्चर करना. अब ये इन्होंने कह दिया कि जिस स्टेट में जिस नवाब का, जिस राजा रानी का अपना ओन नेचुरल सन या सन नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं माना जाएगा आफ्टर देयर डेथ. मतलब आफ्टर देयर डेथ वो जब्त कर लिया जाएगा बाय द गवर्नर, जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया. और उस टाइम जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे? यही लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही अपॉइंट होके आते थे. अंडरस्टूड? वी विल नॉट टॉक बिफोर दिस 1857. आप हमेशा याद रखो कि हमारे जो कंट्री में है, ये रूल करने वाले जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी थे. देयर वाज नॉट अ क्वीन विक्टोरिया. ओके, इंग्लैंड कंट्री डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे. इसके बाद हम देखेंगे 1857 के बाद प्रोक्लेमेशन आते हैं और क्वीन विक्टोरिया रूल करना स्टार्ट कर देते हैं. So the next point under the political cause was the abolition of imperial title of बहादुर शाह जफर. ये abolition कर दिया. ये चीज़ भी आ गया यहाँ पे. जो नवाब ऑफ दिल्ली उस टाइम था, बहादुर शाह जफर के टाइटल को भी छीन लिया गया. अंडरस्टूड? और इसको कब्जा कर लिया गया बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, सो the next point is the deprivations of the pension to the नवाब साहब. ओके, द नवाब साहब का जो पेंशन था उसका भी डिमोलिस्ट कर दिया गया इन लोग ने. इसका भी जो इन लोगों का भी जो प्रेस्टीज था वो प्रेस्टीज डाउन किया गया बाय ब्रिंगिंग अ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. ओके, the third point comes under the causes only, that is your economic cause. Now under economic cause we will see what were the economic cause in India during the East India Company. Okay, East India Company जब रूल करते थे, what were the economic cause? So economic exploitation of the British since the Palissy. Okay, the war of Palissy आपको याद होगा, the war of Palissy, सिराजुद्दौला जहाँ पे नवाब थे उसके साथ हुआ था ये वॉर थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, द ब्रिटिशर ने जो वॉर किया था वो सिराजुद्दौला के साथ, और उसके बाद ये बैटल ऑफ पैलेसी हार गए सिराजुद्दौला, इसमें बहुत बैडली डिफीट हो गए. और नेक्स्ट जो था वो बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था. और उसके बाद जो क्या हुआ, एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट्स. दैट एक्विजिशन मीन्स द होल पावर वेंट टू द ईस्ट इंडिया
company. Now they can do anything according to their rules and regulation. Where they got idea? Because there was a social cause. I already told you. Because of this social cause, they came to know and they understood कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत ही आसानी से इंडिया में किया जा सकता है. तो दिस वेर द things. Okay, the accusation of a Diwani's right were taken by the British and they started bringing all kinds of rules and regulation according to their benefit. Okay, the next point, the economic causes will be the land revenue policy were brought. Land revenue policy तो बहुत पहले से इन लोग ने ला चुके थे. So land revenue policy because they used to get ऑल द प्रॉफिट फ्रॉम द लैंड ओनली, क्योंकि हमारे इंडिया जो है डेफिनेटली एग्रीकल्चर में ही बहुत ही तरक्की कर रहे थे और सेल्फ सफिशिएंट थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट थे. और इन चक्कर में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे भी उन्होंने नहीं छोड़ा और लैंड रेवेन्यू अलग अलग टाइप का टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया और पॉलिसी लाने लगे. इसके अंडर आप ये याद कर सकते हो कि परमानेंट सेटलमेंट किस तरह से लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू, अंडरस्टूड. रतवाड़ी सेटलमेंट कैसे लाया था एंड महावाली सेटलमेंट किस तरह से लाया था. सो दिस वेर द थ्री लैंड रेवेन्यू ब्रॉट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनीज एंड द ब्रिटिशर. ओके, द नेक्स्ट 4 point is here talking about the मिलिट्री कॉस्ट. व्हाट आर द मिलिट्री कॉस्ट? मिलिट्री कॉस्ट के कारण ही इमीडिएट कॉस्ट आया और इमीडिएट कॉस्ट के बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 वी हैव सीन. इससे ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भी रिविलियन नहीं हुआ. देयर वाज अ 50 times rebellions. If you remember, then there was a rebellions through the ट्राइबल्स पीपल, अंडरस्टूड. ट्राइबल्स पीपल्स के थ्रू डिफरेंट रिवेलियंस किया गया था और इन रिवेलियंस के थ्रू बैडली डिफीट हो गए थे इंडियन पीपल्स. वाई? बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ प्लानिंग. इवन 1857 रिवोल्ट भी हार गए थे, लेकिन इसमें ये इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से प्लानिंग और कोटिंग के साथ किया गया था 1857 रिवोल्ट. सो इसीलिए इसको सिफोन म्यूटिनी तो कहते हैं कि बहुत सारे चीज़ में सिफोन म्यूटिनी. इवन द ब्रिटिशर जो है वो ब्रिटिशर और द ब्रिटेन का हिस्टोरियन जो है वो बोलते हैं कि ये सिफोन म्यूटिनी ही था, क्योंकि उन्हें बताना नहीं है अपना वीक पॉइंट, अंडरस्टूड. लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ये सिफोन म्यूटिनी नहीं है. अगर हम अपना हिस्ट्री और डिटेल से जाने तो ये हमें ये पता चलता है कि दिस वॉज नॉट ओनली अ सिफोन म्यूटिनी बिकॉज इट वॉज नॉट अ इमीडिएट वॉर. दिस वॉज अ वॉर विच वॉज मेड बाय प्लानिंग एंड कोटिंग. अगर ये प्लान और कोट नहीं किया जाता तो डेफिनेटली हम इतना लीडर नहीं देख. नंबर 4 point टेल यू अबाउट द मिलिट्री कॉस्ट. ओके, military cost under the revolt of 1857. What was this military cost? Why this 1857 revolt took place? Okay, the military cost आपको पता ही है कि poor pay of Indian soldier, okay, bad behavior and the racial discrimination from the English master. सो ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट से ही था इन लोगों को. और पोर paying skill, okay, the poor payment towards the soldier, not only to the soldier but to the farmer also we have seen. तो ब्रिटिश का तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो ये पॉलिसी था, टोटली प्रॉफिट उन्हीं को होना चाहिए और किसी को नहीं. Okay, next point was under the military was overseas service as per General Service and Enlistment Act. तो ओवरसी करते थे और नो टैक्स पे करते थे ये लोग. बाकी एशियन कंट्री का तो फिर भी कुछ कंडीशन ठीक था, पर इंडिया का टोटली वर्स्ट था. दे मेड टोटली वर्स्ट जब ये नए एक्ट लेना स्टार्ट कर दिया और नए रूल्स रेगुलेशन लाना इंडिया में स्टार्ट कर दिया. ओके, नेक्स्ट इज इमीडिएट कॉस्ट. व्हाट वाज द इमीडिएट कॉस्ट ऑफ द रिवोल्ट 1857? The pig, cow fat and cartridge of the newly introduced infield, okay, rifle. तो ये सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है 1857 में, the cartridge, okay. इसी के कारण ये 1857 रिवोल्ट हुआ था ऐसा बोला गया है, पिग एंड काउ के कारण, क्योंकि उस टाइम यही न्यू इंट्रोड्यूस्ड किया गया था और मंगल पांडे इसका अगेंस्ट में था यूजिंग ऑफ दिस
Mangal Pandey refused to use this, understood, that is the cow pig फैट ग्रिस्ट कार्ट्रिज का जो राइफल न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के थ्रू जो लाया गया था, तो इसी को इमीडिएट कॉज माना गया है. दिस वाज द इमीडिएट कॉज. ओके, दिस ऑल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर वाज अ इमीडिएट कॉज. बट अनदर फैक्टर इफ वी सी, अगर हम कुछ और फैक्टर देखें तो हम ये भी देखते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहा गया है, और इसको सिफोन म्यूटिनी जितना नहीं माना है, एज अ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 माना गया है. इवन द डेफिनेटली यूरोपियन हिस्टोरियन जितने भी हैं और इंडियन हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव भी किया और बताया भी कि ये हम सिफोन म्यूटिनी नहीं मानेंगे, बट इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857. सो लेट्स सी ये ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लीडर कौन कौन था. सो लीडर वॉज मंगल पांडे, नाना साहेब, टाटा टोपियो, कुंवर सिंह and Rani Lakshmi Bai. They were all the leaders who were involved in the revolt of 1857 and they fought very bravely. इन्होंने प्रोटेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को भी किया और इन लीडर ने बहुत अच्छे से फाइट भी किया, दो दे डिड नॉट सक्सीड, बट इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दिस लीडर एंड फॉर द इंडियन पीपल्स. और उसी के बाद तो हम नेशनलिज्म अराइज देखते हैं और नेशनलिज्म अराइज प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है हमारे इंडिया में, नहीं तो नहीं होता ये सब. सेंटर प्लेस ऑफ रिवॉल्ट, विच वे द सेंटर प्लेस ऑफ अ रिवॉल्ट, बैरकपुर जहाँ पे मंगल पांडे थे, क्योंकि मंगल पांडे जो है वो रेजिमेंट ऑफ बंगाल ही थे, जहाँ पे सिफोन म्यूटिनी के कारण स्टार्ट हुआ था. द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे के कारण ही स्टार्ट हुआ था. ही वॉज अ पर्सन हु स्टार्टेड, अंडरस्टूड, द वॉर. सो नेक्स्ट वॉज द कानपुर, अवध, पटना, Meerut and Jhansi. Okay, Jhansi, as you know, Rani Lakshmi Bai, Kanpur as a Nana Sahib, and this all were from this all leader were belonging from this all center. So ये है हमारे important points जहाँ पे हमें पता चलता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कॉज क्या था, what was the cause and who were the leaders and the what were the center place against the East India Company, understood, against the British. So next we will start from the next. Okay, let's continue the revolt of 1857 and we will talk right now about the characteristics. Okay, so let's see the characteristics of revolt of 1857. There were some historian, okay, there were not only some historian but many historian who told that different perspective about the revolt of 1857. As I already told you, many told that, many accepted it was a very mass revolt and a great revolt, consider it, okay. But let's see, number one point, the Chiffon Mutiny. Who were the professor, historian or the writer who told that it was a Chiffon Mutiny, that is the revolt of 1857? Some historian names are there, you have to remember that names, okay. The Durga Das Banerjee, he told that it was a Chiffon Mutiny. Harish Chandra Mukherjee, Dadabhai Naoroji and Ali Robert, okay, he was a European historian, okay. So these were the person who told that 1857 revolt is a Chiffon Mutiny, which was a rifle against of a rifle which was newly introduced by the East India Company, okay. The next point, how many of them consider as a revolt of 1857 as a national revolt? Okay, many historians were there who told that it was a national revolt. Let's see. So, like as per a historian like J.B. Norton, okay, the Alexander Duff, the Otteram and the Holmans, etc.,
consider it was a national revolt. Why national revolt? As I already told you, it was a reason. Many historian told it was a सिपोन म्यूटिनी. अगर ये सिपोन म्यूटिनी होता तो आपको पता है कि सिपोन क्या था, वो जो नए इंट्रोड्यूस किए थे, यहाँ पे ग्रीस्ट ऑफ काउ और पिग का यूज़ किया गया था. ओके, द कार्ट्रियर्स यूज़ किया गया था. तो अगर इसका लड़ाई होता तो हिंदू मुस्लिम में ही पहले कन्फ्लिक्ट होते, ना कि ये दोनों मिलके इसको लड़ाई करता. तो इसीलिए इसको नेशनल रिवॉल्ट भी बोला गया है, क्योंकि इसमें यूनिटी, यही एक 1857 रिवॉल्ट था, फर्स्ट और लास्ट रिवॉल्ट हम बोल सकते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड होके और तब ये लड़ाई किया था. इसीलिए तो इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी कहा गया, विद द Indian First War, okay, like other historian. Who had that? Let's see. It was also considered as a India first war of independence. Okay, it was considered as a first war and second independence war, जहाँ पे हमें आज़ादी मिल गया. That was 1947. As per Vinayak Damodar, okay, Savarkar, he told that it was a India first war of independence. That is not that is of a 1857 revolt. What was a great revolt. Let's see next point, that is revolt of a landlord. बहुत हिस्टोरियन ऐसा भी था जिसने बोला कि ये रिवॉल्ट लैंडलॉर्ड के कारण भी हुआ, लैंडलॉर्ड के लिए भी हुआ, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये रिवॉल्ट पहला रिवॉल्ट नहीं था ऐसा, ये रिवॉल्ट ग्रेट रिवॉल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें हम जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसको बहुत देखा, उसमें इन्वॉल्व बहुत इंसान हुआ था और लड़ाई के लिए, प्रोटेस्ट के लिए ब्रिटिश के. इससे पहले 50 लड़ाई हो चुका था जो ट्राइबल पीपल्स ने अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ाई किए हुए थे. अंडरस्टूड? दैट इज अ रिविलियन. सो लेट्स सी. The next point is about the revolt of landlord. Okay, the R.P. Dutt, Ramesh Chandra Majumdar, and the Surendra Nath Sen and other. These were the people. Okay, that is not यहाँ पे historian जिसने कहा कि 1857 revolt क्या है? Revolt of landlords. So you have to remember this historian name कि किसने क्या कहा. आपको इसमें MCQ का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है. सो लेट्स सी व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ 1857. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह से फेल हो गया था. 1857 ग्रेट रिवॉल्ट माना जाता है, बहुत ही नंबर ऑफ मास में इस रिवॉल्ट को लड़ा गया था, लेकिन ये फेल हो गया बहुत कम्प्लीटली. सो हाउ इट वाज, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फेलियर? ओके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचर ऑफ रिवॉल्ट. ये रिवॉल्ट जो है इसका प्लानिंग कुछ अच्छे ढंग से नहीं किया गया था, इसके कारण ये फेल हो गया. सेकेंड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट ऑफ गोरखास एंड सिख्स टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सी, उस टाइम गोरखा और सिख ये लीडर के सपोर्ट में नहीं थे जो 1857 रिवॉल्ट किया था. वाई? बिकॉज पहले ही मैंने बोल दिया था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ऑफ नेचर ऑफ रिवॉल्ट ढंग से प्लान नहीं किया गया था, और इसी कारण ये रिवॉल्ट को अभी तक साबित नहीं कर पाया कि एक्चुअली ये रिवॉल्ट हुआ क्यों. ये सिफन म्यूटिनी था, नेशनल रिवॉल्ट था, या इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, कि रिवॉल्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स था. अंडरस्टूड? तो दिस वाज द रीजन, क्योंकि इसी कारण यहाँ पे सपोर्ट भी हम देखा कि गोरखास और सिख जो बहुत ही उस टाइम में आर्म फोर्स में ग्रेटेस्ट माना भी जाता था, अभी भी माना जाता है, वो उनका सपोर्ट कहाँ पे था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था. तो डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही जीतेंगे ये वॉर. तो लैक ऑफ अ प्रॉपर लीडरशिप का भी ज़्यादा यूनिटी नहीं देखा गया. लीडरशिप वॉज लैकिंग. ओके, इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेटली अ यूनिटी. लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द प्रिंसली स्टेट, इवन द प्रिंसली स्टेट का भी यूनिटी नहीं देखा गया. दैट वॉज ऑल्सो द रीजन. नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम द एजुकेटेड क्लासेस. एजुकेटेड लीडर जो थे हमारे उस टाइम में, वो भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. सो द लास्ट पॉइंट वी विल टॉक अबाउट द बेटर फायर पावर एंड द सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड द जनरल. लास्ट पॉइंट आपको सब पावर बताते हैं कि ब्रिटिश के पास क्या था? बहुत ही अच्छा गन पाउडर था, फायर पावर था, एंड सुपरमेसी यूनिटी पावर था, और प्लानिंग वो लास्ट मोमेंट में भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था जनरल गवर्नमेंट ने, और उस चीज़ को हैंडल कर लिया, सिचुएशन को हैंडल कर लिया, और
डेफिनेटली डिफीट किया बाकी सब लीडर को, जो लीडर यहाँ पे 1857 में इन्वॉल्व थे. सो इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट, दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर 1857 के बाद ये पावर जो है आपका डायरेक्टली क्वीन विक्टोरिया के पास चले जाते हैं. 100 साल 100 years was ruled by the East India Company and other 100 years almost was ruled by the government of British. Understood? That is a Britain. तो क्वीन यहाँ पे आपको इम्पैक्ट, ये जब ये लड़ाई बहुत बैडली हार गए अंडरस्टूड हमारे लीडर, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनाउंसमेंट ऑफ अ क्वीन प्रोक्लेमेशन केम. ओके, एंड व्हाट क्वीन ने यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट किया, क्वीन ने यही अनाउंसमेंट किया कि अब हम ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इनसे पावर छीन रहे हैं. व्हाई? बिकॉज दे कुड नॉट हैंडल इंडिया इन अ प्रॉपर वे. तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन रहे हैं, और ये पावर किसको दे रहे हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया. नया नाम दे दिया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट ये नया नाम दिया गया सिर्फ काम डाउन करने के लिए, इंडियन पीपल को सिर्फ काम डाउन करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, अब हम लोग रूल करेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया, बहुत ही क्रूरता दिखाया, और अब हम अच्छे तरीके से आपका इंडिया रूल करेंगे. और आपको पता ही है कुछ ऐसा हुआ नहीं. सो नेक्स्ट पॉइंट वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल जो है वो वाइसरॉय में बदल दिया गया. एंड देयर वाज ऑल्सो सी टोल्ड, मीन्स क्वीन विक्टोरिया, ओके, द कंट्री पावर जब ले लिया तो कंट्री टोल्ड दैट रिलीजियस फ्रीडम विल बी देयर इन इंडिया, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द रिलीजियंस. क्योंकि इसको क्यों, ब्रिटेन ही ऐसा कंट्री था जिसने कभी भी नहीं माना कि ये नेशनल रिवॉल्ट है या इंडिया फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट है या रिवॉल्ट ऑफ लैंडलॉर्ड है, बल्कि उन्होंने ही कहा ये सिफोन म्यूटिनी है, क्योंकि वो अपना वीक पॉइंट नहीं दिखाना चाहते थे. वो बोलते थे क्योंकि उनको बहुत शुरू से ही डिवाइड रूल पॉलिसी इंडिया में चलाना था. सो दिस वॉज द कंट्री टोल्ड दैट रिलीजियस फ्रीडम विल बी देयर, वी आर गोइंग टू सेफ गार्ड. ओके, ये हमारे तरफ से गारंटी है, एग्रीमेंट के थ्रू बोला, प्रोक्लेमेशन किया. एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कास्ट एंड ग्रेड. तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ओके स्टूडेंट, ओके, होपफुली अगर यहाँ पे कुछ लीडर्स का नाम, इम्पोर्टेंट नाम नोट्स किया है, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट एंड मेक प्रॉपर नोट्स एंड जस्ट you can revise that. Okay, thank you.